Hello students, welcome to EduLite YouTube channel. I am Vivek Yadav, your physics teacher. And today we are here to study about the equations of motion. Okay, so what do you have to do? Just remember it. I need not to tell it again and again. You have to take out your pen and notebook and start making the notes. Okay, so just let us start with equations of motion. Now, in today's class, we are going to study about the equations of motion. Till now, we have learned about the quantities that are required to understand the concepts of rest and motion. What were those quantities? They were, just speak up with me, they were distance, displacement, speed, velocity and acceleration. These quantities are much necessary to understand the concepts of rest and motion. In today's lecture, I will make you understand the concepts of equations of motion. Okay, so actually what happened? These quantities were not sufficiently enough to understand to describe the rest and motion of an object. Later on, there were some equations that were derived from the discussion of those five quantities, and a relationship was built up in between those five quantities. And that relationship are known as those relationships. That is not a single relationship. There are actually four relationships that are there. Those relationships are known as equations of motion. Okay, so in today's class we will study about those equations of motion, and there are three methods to derive these equations of motion. Okay, I think you have studied the two methods in your 9th class, but in 11th class you just need to focus upon calculus method. Okay, so we will discuss about these equations of motion in today's video, and the calculus method and the approach that we need to understand. Okay, so just get connected with me. So students, the first equation of motion that was given as was V is equals to U plus AT. Second equation of motion is S is equals to UT plus half AT square. Third of equation of motion between, that is S is equals to V square minus U square upon 2A, and the fourth one, okay, this is a special equation of motion, this fourth one, that says the distance traveled in the nth second by an object, and that is given as, yes, that is given as U plus 2n minus 1 into A by 2. Okay, we will study about these equations of motion in today's lecture. Okay, so let us now start deriving these equations of motion. Okay, so as I have told you that we will study these derivations using calculus method, and if you want to adopt using formulas and graphical method, look in your 9th class textbook. Okay, so just to have a look over your 9th class textbook, we will solve them by graphical method only, because we are in 11th class and we are supposed to have grown up, and now we must use some calculus in our physics to make it very sound. And actually students, calculus method is very easy method. You know that calculus actually was that has been originated because so that you can compile a lot of equations and can solve them in an easy method. Okay, so let us start. Students, we know that acceleration of an object is defined as dv by dt, right? That is the formula. Okay, now let us cross multiply, then I get dv is equals to a into dt. Now this is a sort of differential equation. Okay, and when we solve the differential equations, we have to integrate the whole sides. Because you are in right now in 11th class, you might not be well familiar with integration, but integration is an important part of 12th class mathematics. But basic integration might have been taught to you, because that is what needed actually in physics.
Okay, so let me integrate it on both sides. This is the symbol of integration. Now we need to put on the limits. What are the limits? At initially means when t is equals to 0, the velocity of the object is known as u, initial velocity, and at some moment of time t, the object is supposed to have attained a velocity v. Now we will integrate a dv. How integration takes place? Look here. Integration of x raised to power n dx is x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Now if there is no x raised to power n, there is only dx. अब भैया जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? उसका भगवान होता है, और सबका मालिक एक. ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है. 1 है तो dx लिख दिया और इसके साथ 1 लिखा. अब आई कैन राइट इज एट x रेज टू पावर 0 इंटू dx. नाउ इट बिकम्स इक्वल्स टू एज x की पावर क्या होता था, +1 कर दिया था हमने पावर में, अपॉन +1 प्लस c. मीन्स ये चीज क्या बन गई, x. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बन गया, x. इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या बन जाएगा, v. और लिमिट क्या रखनी है अपने को, u से v. A for acceleration. Acceleration is constant. These equations of motions are only for constant acceleration. These are not for the variable acceleration. Okay, these are for constant acceleration. Here acceleration is constant. Similarly, integration of dt will become t. How? Integration of dx by x, dv का v, तो dt का t. ठीक है. Limits are from 0 to t. Okay, now we will put upper limit minus lower limit, that is v minus u is equals to a into t minus 0. Right बेटा? Now basically अप्लाई कर दीजिए अपना कॉमन मेथड. कॉमन मेथड कौन सा, चीजों को इधर उधर करने का. v minus u becomes equals to at और v becomes equals to u plus at. That's the derivation of first equation of motion. पहली equation of motion इस प्रकार से derive होती है. It's easy. It's very easy actually. No need to worry about it. Okay. Now we will have a look over the second equation of motion. अब अपन second equation of motion को और थोड़ा सा देख लेते हैं. क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से derive होगी. ठीक है. So, second equation of motion is what? Actually, it is the relation between displacement, initial velocity, time, and acceleration. So, what is the formula that describes this relation? Is there any formula that describes this relation? सोचा कोई रिलेशन? हाँ, तो है ना ऐसा एक रिलेशन हमारे पास, लेकिन वो क्या है, वो पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है. कौन सा है बच्चों, वो है हमारे पास v इज इक्वल्स टू dx बाई dt. है ना, पोजीशन और वेलोसिटी आ जाती है इसमें. चलो कोई बात नहीं, dx को लिखा जा सकता है v इंटू dt. अब क्या हम कोई ऐसा रिलेशन लिख सकते हैं जो कि v को और a के बीच में रिलेशन बताए. पहली इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है ना, अभी यही है, मिटाई भी नहीं है मैंने, डिराइव कर रखी है अपन ने. बस इस v की जगह u प्लस ए टी और पुट कर लो. dx इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी इंटू डी टी. अब क्या हुआ, अब हम बना दी अपन ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अब इंटीग्रेशन आ जाएगा. क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन करते वक्त क्या करना है भाई, बताओ जरा. भाई इंटीग्रेशन हमें करना है तो हमें लिमिट्स का ध्यान में रखना है. यहाँ dt है, यहाँ dx है. शुरू में जब टाइम शुरू हुआ था उस समय पार्टिकल की पोजीशन मान लेता हूँ 0 थी. जब थोड़ी देर बाद टाइम t हुआ तो उस समय पार्टिकल s पोजीशन पर पहुंच गया. कहाँ पहुंच गया, s पोजीशन पर. कहाँ पहुंच गया, s पोजीशन पर. तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x लिमिट 0 से s इज इक्वल्स टू. अब बेटा इसको अलग अलग करके लिखो. 0 से t u dt प्लस ए टी डी टी, और लिमिट वही है 0 से t. ठीक है, अभी तक बोर्ड के ऊपर फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का अप्लाई करना आना चाहिए बस. ठीक है, देखो
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो यहाँ, s माइनस 0 इज इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट लिमिट dt इंटीग्रेशन ऑफ dt लिमिट 0 से t प्लस a कांस्टेंट t dt लिमिट 0 से t। ठीक है, यहाँ t की पावर कितनी है 1। ठीक है बेटा, s माइनस 0 कितना हुआ s इज इक्वल्स टू, अरे u कॉमन आया था ओनली, u dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t प्लस a t dt का t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से t। t स्क्वायर बाई 2 क्यों बच्चों? t स्क्वायर बाई 2 इसलिए क्योंकि x रेज टू पावर n dx का फॉर्मूला x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, मतलब पावर एक बढ़ेगी, पावर एक बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पावर अपन ने एक से बढ़ा दी है। अब क्या करेंगे, अब लिमिट खोल दीजिए इनकी। ठीक है, लिमिट खोल देंगे तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और वो क्या है अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या है, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये चीज है हमारे पास। ठीक है बेटा, हमारे पास इसमें हमें कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जो रिलेशन बताए एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन में। याद करो, याद करो, वीडियो पॉज करके याद करना, आएगा याद। लिखा था आज अपनी प्रीवियस वीडियो में, लिखा था अपन ने वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, आया था ना। हाँ, a इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू डी वी। अब लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर, अब हमें लिमिट्स फिर से पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है, लिमिट्स पुट करेंगे तो जब ऑब्जेक्ट इधर है dx, इनिशियली 0 पर था, जब जहां था, जिस जगह से अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ है उस समय वो u की स्पीड से मूव कर रहा था। कुछ समय बाद वो जब s पोजीशन पर पहुंचा उसकी वेलोसिटी v हो गई। क्यों हो गई? क्यों हो गई v? क्योंकि भाई वो एक्सीलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है अपना। बोलो है? यस। तो अब एक्सीलरेशन अपना बेटा बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से s, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लिमिट हमारे पास क्या है u से v। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन में पढ़ाया होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a इंटू एस माइनस 0 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है बेटा, चलिए अब आज इधर देखिए, as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, एस की वैल्यू निकालनी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है। ये आ गई हमारे पास, क्या बोलो, क्या आ गई? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन distance traveled, initial velocity, final velocity and acceleration, है ना? तो this is the relation. Okay, now we will see the fourth equation of motion. अभी अपन fourth equation of motion भी देख लेंगे। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बच्चों वो है थोड़ी सी बड़ा डेरिवेशन है। मैं मिटा देता हूं एक बार इस चीज को ताकि हम पढ़ लें उसको। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो nth मतलब nv सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, ऐसे नहीं 5 सेकंड में नहीं, 5वीं सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, वो निकालना है हमें। भाई एक तो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना स्टार्ट हुआ, ये पहले 4 सेकंड में यहां पहुंचा था और 5 सेकंड बाद यहां पहुंच गया, तो 5वीं सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना ही तो कर लिया ना। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। कैसे निकालें कि भैया पहले ना 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 5 सेकंड में कितना किया, माइनस कर दे 4 सेकंड से, तो क्या आ जाएगा 5th सेकंड का डिस्टेंस। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना? तो ये कैलकुलेशन अपने को करनी है इसके लिए। तो वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड, एंड फॉर दैट
हमें क्या करना है, फॉर दैट हमें करना है, हमें निकालना है डिस्टेंस nth सेकेंड में, फिर माइनस कर देना है n-1th सेकेंड का डिस्टेंस। ठीक है, n सेकेंड्स का डिस्टेंस माइनस n-1 सेकेंड का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो लेट अस सी, देखते हैं कैसे होगा। आसानी से हो जाएगा, बहुत इजी है। एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है और वेलोसिटी है वो डिपेंड करते हैं रिलेशन में v = dx/dt पे। तो हमारा यहाँ x डिस्टेंस जो है वो बन गया v × dt। ठीक है, v में और u में कोई रिलेशन है, याद आएगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, याद आएगा, u + at × dt। अब हमें डिस्टेंस निकालना है n सेकेंड में कितना चला। ठीक है, माइनस करना है n-1 सेकेंड वाला। तो जब शुरुआत में n-1 सेकेंड हो गई थी उस समय उस पार्टिकल की पोजीशन Sn-1 मान लेता हूं। ठीक है, और जब n सेकेंड हुई तो उस समय पार्टिकल की पोजीशन Sn हो गई। सर हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही, डाउट है यहाँ पे। डाउट ये है कि आप ऐसे लिमिट्स को कैसे ले लेते हो, आपको कैसे पता कि इधर कौन सी लिमिट लेनी है, इधर कौन सी लिमिट लेनी है। तो दिस इज जनरली द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स मेनी टाइम। ओके बेटा, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि देखिए लिमिट्स जो चूज अपन करते हैं वो इधर जो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, t के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। x क्या है, पोजीशन है। तो यहाँ पर जो हम लिमिट लेंगे वो किसकी लेंगे, पोजीशन की। यहाँ पे क्या है, t है। t क्या है, टाइम है। तो यहाँ पर जो हम लिमिट लेंगे वो किसकी लेंगे, टाइम की लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इनको चूज करते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन क्या आया था बच्चों, x। Sn-1 से Sn इज इक्वल्स टू क्या बच गया, u dt। लिमिट है हमारे पास n-1 से n प्लस a t dt। लिमिट क्या है, n-1 से n। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड इज इक्वल टू u तो बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन क्या बन गया, t। लिमिट क्या है, n-1 से n। a तो एज इट इज रह गया, t का इंटीग्रेशन हो गया t²/2। लिमिट क्या है, n-1 से n। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज मिल गई आपके पास। nth सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या हो गया, क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे रे रे रे, माइनस का साइन था ये। ठीक है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस हो गई, a/2 तो बाहर रह गया t², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों, ठीक है, जरा सोल्व करते हैं। Sn/th इज इक्वल्स टू u n-n+1 प्लस a/2। अब क्या बन गया, n² माइनस a-b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। सर अप्लाई कर दिया ना। अब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो क्या होगा, अरे ओ सांबा क्या होगा बताओ जरा, क्या होगा भैया, बाय ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो लेट अस कैलकुलेट nth सेकेंड में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, बेटा n से n कैंसिल, u बचता है a/2। आप जरा इसके ब्रैकेट के बाहर के साइन चेंज कर दीजिए। देखो मैं यहीं पे कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस, n² से n² कैंसिल, क्या बच गया, 2n-1। तो आपके पास nth सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस आ गया ना u/2 इंटू 2n-1। ऐसे ना बहुत क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ में हमें ये प्रूव करना होता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन फर्स्ट 3 and 5 सेकेंड्स।
ठीक है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल इन एस एन है, वो एस एनथ नहीं है। एस एनथ की लैंग्वेज किस प्रकार से होगी समझिए जरा उसको। ये एनथ सेकेंड में किया गया डिस्टेंस है, एनथ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो है ये। कैसे निकलेगा वो, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। कोई आपसे पूछे आप कहाँ गए थे, मैं चिड़ावा गया था, मैं किसी शहर में गया था। अच्छा कितनी देर में गए, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचा। तो आप ये बताइए आपने 10वें मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10th मिनट ऑफ मोशन में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट वी डू, we calculate distance traveled by the object in nth second of motion। क्या समझे, nth second of motion, राइम बन गया, nth second of motion में distance traveled। समझ रहे हैं बात को। So this is these are the 4 equations of motion. They have been derived using calculus method. But चिंता की कोई बात नहीं है, घर में 9th क्लास की किताब है, छोटे भाई बहन के पास होगी, अड़ोसी पड़ोसी के पास होगी। ग्राफिकल मेथड और फॉर्मूला बेस्ड मेथड, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आलसी हैं, नहीं देखना चाहते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो देखिए फिर। ठीक है, मैं भी आपको फॉर्मूला बेस्ड डेरिवेशंस और बता रहा हूं कि फॉर्मूला की हेल्प से अपन किस प्रकार से इन डेरिवेशंस को निकालेंगे। तो पेपर में जब तक अगर क्वेश्चन जो है वो कहे कि यूजिंग कैलकुलस मेथड, तो कैलकुलस ही यूज करना है। ठीक है, और स्कूल एग्जाम में तो ये सवाल बार 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 आता है कि यू हैव टू यूज कैलकुलस मेथड टू डेराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो लेट अस सी द मेथड, अनदर मेथड टू डेराइव द इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन t, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, at बिकम्स इक्वल्स टू v माइनस यू। u को उठा के इधर फेंक दो, लेफ्ट साइड में फेंक दो, फालतू की चीज है। u प्लस at इज इक्वल्स टू v, क्या बन गया, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। बोलो बन गया, अरे हाँ भैया बन गया। आ गई ना v की वैल्यू u प्लस at, तो ये कौन सी हो गई, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई है ना, इजीली हो गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन और देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल होता है, चलो अच्छे से लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, होता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से चलना स्टार्ट हुई, ये हमारे भाई साहब, ठीक है, ये यहां से चलना स्टार्ट हुए। इनिशियली u की वेलोसिटी से चल रहे थे, यहाँ पहुंचे तब हमने देखा इनकी स्पीड v हो गई और ये कांस्टेंट एक्सीलरेट हो रहे थे, उसेन बोल्ट है, दगड़क दगड़क दगड़क, ठीक है, हर कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ चले और इन्होंने एक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। कौन सा डिस्टेंस, s किया। तो चलो इनकी एवरेज स्पीड क्या थी इस दौरान, इनकी एवरेज स्पीड हो गई सर v प्लस यू बाई 2 हो गई ना, दैट इज एवरेज स्पीड। नाउ कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं t टाइम में किया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड कितनी v प्लस यू बाई 2 इनटू टाइम, टाइम कितना t। v का फॉर्मूला तो पढ़ के आए हो, क्या होता है u प्लस at, ये रहा, तो यहाँ पुट कर दीजिए, s की वैल्यू आ गई, v की जगह रख दिया u प्लस at प्लस u बाई 2 इंटू t, तो s इज इक्वल्स टू 2u प्लस at बाई 2 इंटू t।
s इज इक्वल्स टू 2u बाई टू u प्लस 80 बाई टू इंटू टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 80 स्क्वायर बाई टू। बोलो आया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इन दिस वे वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, अभी अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए आ जाए तो कैसे करेंगे? बस यहां तक तो बच्चा सेम है, टाइम की वैल्यू चेंज कर दो, टाइम की वैल्यू यहां से निकाल दो, यहां से देखो कैसे, देखो इसी फॉर्मूले को लिखा रहने देता हूं मैं। क्या करें? s इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई टू, टाइम की वैल्यू रख लो v माइनस यू बाई ए, आ जाएगी ना? क्या बच गया? s इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ले, दो लाइन में हो गया ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दो लाइन की थी, कितनी आसान थी, है ना? ऐसे ही फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन और निकालनी देख लेते हैं अभी अपन। आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, बिल्कुल। तो चलिए लेट अस सी द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन भी अपन डिराइव कर लेते हैं। क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसमें? nth सेकेंड में। देखो भैया वही, ये अपने हुसैन बोल्ट नहीं, मिल्खा सिंह, मेड इन इंडिया का ट्रेंड चल रहा है। दिस इज मिल्खा सिंह रनिंग वेरी फास्ट, दगड़क दगड़क दगड़क। ये यहाँ पहुँचते हैं n सेकेंड्स में। कितनी देर में पहुँचते हैं? n सेकेंड्स में। तो यहाँ पहुँचते हैं n-1 सेकेंड में। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो लिया n सेकेंड्स, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम लिया n-1 सेकेंड। तो इस डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं Sn, और इस डिस्टेंस को बोल देते हैं Sn-1। ठीक है, हमें ये निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना था। ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स कितना हो जाएगा? सर ut प्लस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हाफ at स्क्वायर होता है, t की जगह क्या रखना है? n सेकेंड्स, un प्लस हाफ an स्क्वायर। n-1 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखो फॉर्मूला हमारा यही है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें पुट कर रहे हैं अपन। अब t की जगह n-1 रख दीजिए, u इंटू n-1 प्लस 1/2 इंटू a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। अब हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो SNTH इज इक्वल्स टू Sn में से Sn-1 माइनस करना है। ठीक है, तो Sn कितना है? Sn है un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस u इंटू n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। un माइनस un-1 प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a n-1 स्क्वायर। देखिए यहाँ से u कॉमन n-1 बचेगा, प्लस हाफ ए, यहाँ से n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर बचेगा। कैलकुलस मेथड याद है कि भूल गए? अभी वीडियो को पीछे ले जाके देखो, कैलकुलस मेथड में भी यही इक्वेशन बन रही थी। सॉल्व करके अपन ने सीधा रिजल्ट लिख दिया था। वहाँ पर भी क्या आएगा? Snth इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट वर अवर derivation of the equations of motion using two methods.
Okay, now what you need to do, just try to derive these equations of motion using graphical method by yourself, because that one is also important. And if there are still problems, you are not able to solve them, you can write me in the comment section. I will make a video for it. And very soon you will find a video for the mathematical tools required for differentiation and integration. So just get connected, subscribe the channel, and don't forget to press the bell icons, because only then you will get the notification. Mathematical tools की वीडियो अपडेट करूंगा तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा. Okay, तो stay connected. Till then, bye bye.